Hello, dear students. Yesterday we have started the chapter sequence and series, and in that we have studied up to for arithmetic progression as well as geometric progression. We have studied properties of arithmetic progression and properties of geometric progression. Some formulae related to geometric progression to find nth term of the geometric progression, to find the common ratio, and we have taken some examples yesterday. Now we are going to start from question number 3. Read it. For the GP, if R is equal to 1 by 3 and A is equal to 9, then T7 is equal to, R की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, T7 निकालना है तो हम सिर्फ Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे. for GP Tn is equal to, we know that A into R raised to n minus 1. Therefore, we can say that T7 is equal to A into R raised to 6 because the value of n is 7 here. Value of A is given, that is 9, and into R raised to 6 means 1 by 3 raised to 6. That is equal to 9 into 1 upon 3 raised to 6. 3 raised to 6 means 9 cube. 9 cube is 729, or we can write it as 3 raised to 6 can be written as 3 square into 3 raised to 4. Now this 9 and 9 get cancelled, and 1 upon 3 raised to 4 means 81, means the value of T7 means the 7th term of that GP is 1 by 81. Got it? Now next question. A is given 7 by 243 and R is given 3. We are going to find T6. The same question is here for the GP. Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Therefore, T6 is equal to A into R raised to 5. That is, A is 7 upon 243 and value of R is 3 raised to 5. That is 7 upon 243 and R raised to 5. 3 raised to 5 is also 243. Therefore, the value T6 is nothing but 7. T6 की value 7 आने वाली. Next, the value of R is given and T6 is given. We are going to find A here. Now, again use the same formula for the GP. For GP, Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Therefore, T6 is equal to A into R raised to 5. T6 की वैल्यू दी है आपको 1701 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये माइनस 3 रेज टू 5. देयरफॉर 1701 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 243. देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस 1701 डिवाइडेड बाय 243. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. जैसे पहले हम 9 का डिवीजन देते हैं. 9 का डिवीजन दिया तो 9 1 जा 9, 80 हो गया. 9 8 जा 72, 81, और 9 से इसको डिवाइड किया तो 9 2 जा 18 and 9 7 जा, and 27 1 जा 27, 27 7 जा, means the value of A is minus 7. The value of A is minus 7 है. Look at this. यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट है. कैलकुलेशन आपको अच्छा आना चाहिए, उसके लिए आपको टेबल आने जरूरी है. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ सब क्वेश्चन, जिसमें दिया है A की वैल्यू दी है 2 by 3 और T6 दिया है 162. तो R फाइंड आउट करना है. यहां पर भी हम GP का फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर GP Tn is equal to A into R raised to n minus 1. T6 दिया है तो n की वैल्यू 6 रखेंगे. Therefore T6 is equal to A into R raised to 5. Therefore T6 की वैल्यू दी है 162 is equal to A की वैल्यू दी है 2 by 3 into R raised to 5. Therefore R raised to 5 is equal to आएगा 162 into 3 by 2 होगा. ये 2 1 जा 81 जा. 81 into 3 means R raised to 5. We can write 81 as 3 raised to 4 into 3.
means r raised to 5 is nothing but 3 raised to 5, and that's why value of r must be equal to 3. Value of r is 3. Getting? Now next, for a GP, if a is equal to 3 and t7 is equal to 192, means the same question is there. Here we are going to find one extra, that is t11. Again, for the GP, Tn is equal to a into r raised to n minus 1. T7 दिया है तो n की वैल्यू 7 रखेंगे तो a into r raised to 6 आएगा. Therefore we can say that T7 दिया है 192 और a की वैल्यू दी है आपको 3 into r raised to 6. तो therefore r raised to 6 is equal to आएगा 192 divided by 3. r raised to 6 is equal to आएगा 64. 64 यानी 2 का पावर 6 होता है, तो r की वैल्यू 2 या -2, क्योंकि ये इवन पावर है. देखिए आप यहां पर इसको 2 रेज टू 6 भी लिख सकते हैं, -2 रेज टू 6 भी लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू आएगा प्लस और -2. अब हमें t11 निकालना है. नाउ ये r की वैल्यू आ गई प्लस और -2. नाउ t11 इज इक्वल टू n की वैल्यू 11 इसमें डालेंगे तो a इंटू r रेज टू आएगा 10. a की वैल्यू दी है आपको 3 और ये आएगा प्लस और -2 रेज टू 10. अब ये +2 है हो या -2, इसका पावर तो 10 है, इसलिए ये पॉजिटिव टर्म आने वाली है. दैट इज 3 इंटू 1024 इज 2 रेज टू पावर 10. आप करके देखिए इसको, तो t11 की वैल्यू आएगी आपकी 3072. दिस इज द वैल्यू ऑफ t11. समझ में आ रहा है आपको? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. इन जीपी इफ थर्ड टर्म इज 1/5 and sixth term is 1/625, then nth term is, देखिए फॉर जीपी tn का फॉर्मूला आपको पता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1. आपको थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म दी है, तो t3 इज इक्वल टू n की वैल्यू 3 डालेंगे तो a इंटू आर स्क्वायर आएगा. इसको फर्स्ट लिखेंगे हम. एंड t6 इज इक्वल टू आएगा a इंटू आर रेज टू 5. इसको सेकेंड लिखेंगे. देयरफॉर t3 अपॉन t6 इज इक्वल टू, t3 क्या है, a आर स्क्वायर अपॉन a इंटू आर रेज टू 5. तो यहां पे t3 की वैल्यू दी है आपको 1/5, t6 की वैल्यू 1/625 इज इक्वल टू आएगा 1/r³. यहां a कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r रेज टू 5 इज 1/r³. देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज 1/5 इंटू 625 इज इक्वल टू 1/r³. तो ये आएगा 125 इज इक्वल टू 1/r³. तो देयरफॉर मैं यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर r³ की वैल्यू आएगी 1/125. क्यूब रूट निकालेंगे तो r की वैल्यू आएगी 1/5. tn निकालना है आपको, तो r की वैल्यू और a की वैल्यू इसमें डालनी है. उसके लिए a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको. नाउ t3 इज इक्वल टू a इंटू आर स्क्वायर. t3 की वैल्यू है 1/5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें निकालनी है r स्क्वायर यानी 1/25. तो ये 25 आएगा इधर, तो a की वैल्यू आएगी 5. ये a की वैल्यू आ गई आपकी, ये r की वैल्यू आ गई. अब हमें tn निकालना है. ठीक है, tn निकालना है. तो नाउ tn इज इक्वल टू, नाउ tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1. तो ये आएगा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू आर की वैल्यू 1/5 रेज टू n माइनस 1. तो 1/5 यानी 5 का पावर -1. यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, tn की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर से इधर कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो क्या आएगा, ये tn इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको लिखेंगे हम 5 रेज टू 1 माइनस n. ये समझता है कि देखिए 1/5 यानी 5 का पावर -1.
तो -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एन हो गया। अब यहाँ पे 5 का पावर 1 है तो Tn इज इक्वल टू आएगा 5 रेज टू 2 माइनस एन यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस। ये दोनों की आपको एडिशन करनी पड़ेगी। 1 प्लस 1 माइनस एन दैट इज 2 माइनस एन। ये फाइनल वैल्यू आएगी आपकी Tn की। Tn इज इक्वल टू 5 रेज टू 2 माइनस एन। समझ में आया आपको? तो इसको सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Now look at the next question number 6. Which term of the GP 5, 25, 125, 625, एक टर्म रह गई थी यहाँ पे 5, 25, 620, 125, 625 and so on is 5 raised to 10. तो पहले हम इस जीपी के लिए a और r की वैल्यू निकालेंगे और जनरल टर्म फाइंड करेंगे और उसमें n की वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ n इट इज 5 रेज टू 10 ये निकालना है। तो फॉर गिवन जीपी इज 5, 25, 125, 625 and so on. Therefore here a value of a is 5 and r is equal to 25 upon 5 that is nothing but 5. a की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 5 है। Therefore we can say that Tn is equal to a into r raised to n। हमें n की वैल्यू निकालनी है जहां Tn हमें लेना है 5 raised to 10 is equal to 5 into r raised to n minus 1 sorry it is r raised to n minus 1। r की वैल्यू भी है 5 तो लिखता हूं मैं 5 raised to n minus 1। समझ में आ रहा है ये? तो देखिए यहां 5 का पावर 1 है तो ये होगा therefore 5 raised to 10 is equal to 5 raised to n क्योंकि ये n minus 1 plus 1 यानी n आएगा तो therefore n की वैल्यू होगी 10। therefore we can say that 10th term of given GP is 5 raised to 10। समझ में आया? अब देखिए यहां पे सेम क्वेश्चन है इन द सेम वे विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस √3 3 3√3 एंड सो ऑन इज 243। कौन सी टर्म 243 है ये निकालना है हमें। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे जैसे कि गिवन जीपी क्या है। गिवन जीपी इज √3 3 3√3 एंड सो ऑन जिसमें a की वैल्यू है √3 और r की वैल्यू है 3 अपॉन √3 दैट इज नथिंग बट √3 यानी यहां पे भी a की वैल्यू √3 और r की वैल्यू √3 है। नाउ यूज द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1। तो Tn इज इक्वल टू a की वैल्यू है √3 रेज टू √3 का पावर n माइनस 1। तो इसका √3 का पावर 1 है तो Tn की वैल्यू दी है 243 इज इक्वल टू √3 का पावर आएगा n। अब √3 यानी 3 रेज टू 1/2 होता है। अब ये जो टर्म है ये है 3 रेज टू 5 इज इक्वल टू ये आएगा 3 रेज टू n/2 सिंस वी कैन राइट √3 यानी होता है 3 रेज टू 1/2 और इसका पावर n निकालेंगे तो ये n/2। तो कंपेयर करने के बाद n/2 इज इक्वल टू 5 आएगा तो n की वैल्यू यहां पे 10 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10th टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 243 और 243 इज द 10th टर्म ऑफ गिवन जीपी। तो आपका आंसर हो गया n is equal to 10। समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टर्म्स 4/3 x एंड 4/27 आर इन जीपी। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट 4/3 x and 4/27 are in GP।
ये जीपी में है, जीपी में है यानी क्या हो गया, इनका कॉमन रेशियो सेम हो गया, कॉमन रेशियो सेम हो गए यानी x अपॉन 4/3 मस्ट बी इक्वल टू 4/27 डिवाइडेड बाय x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4/27 इंटू 4/3। तो देयरफॉर x स्क्वायर आएगा 16/81। इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस 4/9। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन टर्म्स आर इन जीपी। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस और माइनस 4/9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Now look at for question number 9. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। इफ फॉर अ सीक्वेंस tn is given 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3, first of all we have to show that the sequence is gp. Now question is, when can we say that one sequence is gp? A sequence is said to be gp if its common ratio is constant. अब कॉमन रेशियो r का क्या फॉर्मूला होता है, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t रेज टू नहीं, tn प्लस 1 अपॉन tn। इसका अगर रेशियो कांस्टेंट आता है, वो ना चेंज होने वाला आता है, तो वी कैन से दैट सीक्वेंस इज जीपी। और tn प्लस 1 अपॉन tn की जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट योर कॉमन रेशियो। और एक बार आपको कॉमन रेशियो मिल गया तो इसकी फर्स्ट टर्म तो आपको पता है कि tn दिया है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है यानी n की वैल्यू सिर्फ 1 डालनी है उसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम धीरे धीरे। आप इसकी प्रोसीजर याद रखिए, क्योंकि ये सॉल्व किया तो ये आपको बराबर आने वाला है, क्योंकि बोथ क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम टाइप। देखिए जैसे कि फॉर गिवन सीक्वेंस tn is 5 raised to n minus 3 divided by 2 raised to n minus 3। इसको लिखेंगे हम फर्स्ट। Therefore tm प्लस 1 निकालेंगे। अब ये बहुत इजी है, देखिए tn दिया है उस पे से tn प्लस 1 निकालना है, यानी जैसे यहां पे n की जगह n प्लस 1 ने ली है, यहां पे भी n के जगह हमें n प्लस 1 लिखना है, यानी 5 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3, यानी ये आएगा 5 रेज टू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n माइनस 2। ये समझ में आएगा। देखिए फिर से एक बार उसको अच्छे से समझ लीजिए। जब tn आपको दिया है और उस पे से tn प्लस 1 निकालना है, तो जस्ट n के जगह पे n प्लस 1 लिखो तो आपको tn प्लस 1 निकाल मिलेगा। नाउ जीपी प्रूव करना है, इसलिए हमें फाइंड करना है tn प्लस 1 अपॉन tn। अब tn प्लस 1 क्या है, ये है 5 रेज टू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n माइनस 2। इसको डिवाइड करना है tn से, मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो tn प्लस 1 अपॉन tn डिवाइडेड बाय ये टर्म आने वाली है, तो इसको इनटू करें तो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये होगा 2 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 5 रेज टू n माइनस 3। समझ में आएगा, देखिए आपको, ठीक है। अब इसके हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करना है। जैसे आगे होगा दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू n माइनस 2 माइनस n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n माइनस 2 माइनस n माइनस 3। ये स्टेप पे देखिए यहां लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किए हैं, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n वाला, ठीक है। यानी ये और ये डिवीजन में है, इसलिए इसका पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, n माइनस 2 से n माइनस 3। इसको हमने डिनोमिनेटर में लेके गए, इसलिए n माइनस 2 में से n माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किया। जब इसको ओपन करके खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए देयरफॉर tn प्लस 1 अपॉन tn क्या आता है, देखिए इज इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, n और माइनस n कैंसिल होगा, ये होगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3, यानी यहां पे सिंपली रहेगा 5
और डिवाइडेड में रहेगा 2। एक बार फिर से ब्रैकेट ओपन करके उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे ब्रैकेट ओपन किए तो ये माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये -n+3, 3 - 2 यानी 1 होगा, 5 का पावर 1 यानी 5। तो ये आ गई वैल्यू 5/2 विच इज कांस्टेंट, इसमें n वाली टर्म नहीं रही, इसलिए ये कांस्टेंट बन गया। और ये अगर कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ द टर्म विथ इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज जीपी। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। देयरफॉर फॉर फर्स्ट टर्म put n is equal to 1 in first। इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे तो t1 is equal to क्या आएगा, 5⁻1 - 3 अपॉन 2⁻1 - 3। तो ये आएगा 5⁻2 अपॉन 2⁻2, जिसको हम लिखेंगे 2² अपॉन 5²। पावर निगेटिव का पॉजिटिव करना है, इसलिए दैट इज नथिंग बट 4/25। देयरफॉर वी कैन से दैट फर्स्ट टर्म a is equal to 4/25। और कॉमन रेशियो इसका क्या, एंड कॉमन रेशियो, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, कॉमन रेशियो r is equal to क्या आएगा, r is equal to आएगा 5/2। दिस इज द योर आंसर। समझ में आया आपको? तो चलो इसको नोट कर लीजिए। अब सेम टाइप से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। जैसे tn दिया है फॉर गिवन सीक्वेंस, tn क्या दिया है, tn इज 5⁻n - 2 अपॉन 4⁻n - 3। इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देयरफॉर tn+1 निकालेंगे। tn+1 क्या आएगा, 5⁻n+1 - 2 डिवाइडेड बाय 4⁻n+1 - 3, तो इज इक्वल टू आएगा 5⁻n - 1 अपॉन 4⁻n - 2। समझ में आया? इसको लिखेंगे सेकेंड। नाउ tn+1 अपॉन tn इज इक्वल टू, tn+1 क्या आया, 5⁻n - 1 अपॉन 4⁻n - 2 इंटू करेंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा 4⁻n - 3 अपॉन 5⁻n - 2। इसको लिखेंगे 5 क्या आएगा, n - 1 - n - 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा, n - 2 - n - 3। तो यहां पे भी आएगा 5 और यहां पे आएगा 4, तो ये आएगा 5/4। तो tn+1 अपॉन tn ये आएगा 5/4 विच इज कांस्टेंट। और ये अगर कांस्टेंट है तो देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज जीपी। देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या? एपी में भी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 10th स्टैंडर्ड में। अब इसकी फर्स्ट टर्म निकालना है हमें। नाउ फॉर फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, n की वैल्यू 1 इसमें डालनी है। n इज इक्वल टू आएगा 5⁻1 - 2 अपॉन 4⁻1 - 3, that is 5⁻1 upon 4⁻2, that is 4² upon 5⁻1। 4² आएगा 16/5। तो therefore first term a is equal to क्या आया, फर्स्ट टर्म a is equal to आएगा 16/5 एंड इसका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो r is equal to कितनी आई वैल्यू, कॉमन रेशियो r is equal to यहां पे वैल्यू आई है 5/4। समझे आप?
तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड थ्री टर्म्स इन जीपी, थ्री टर्म्स इन जीपी फाइंड आउट करना है सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। तीन टर्म्स है जिनकी सम एडिशन 21 है और जिनके स्क्वायर्स की एडिशन आपको 189 थी। ठीक है, तो जैसे ही हमें फाइंड थ्री टर्म्स ऐसे आता है तो हमें थ्री टर्म्स इन जीपी कैसे कंसीडर करना है, इसका एक क्राइटेरिया मैंने दिया हुआ है। तो वैसे कंसीडर करेंगे, लेट रिक्वायर्ड थ्री टर्म्स in GP be A upon R, A and AR. तो according to the first condition, therefore first condition क्या है, A upon R plus A plus AR is equal to 21. अब अपना पहला एम है to find the values of A and R। तो इसमें से ए कॉमन निकलेगा, ए से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21 अपॉन ए। देयरफॉर 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू आएगा 21 अपॉन ए माइनस 1। इसको हम फर्स्ट लिखेंगे। आर को हमने ए में रिप्रेजेंट किया। अब सेकेंड कंडीशन क्या दी है, देखो, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड कंडीशन, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189। अब और इसको डिवाइड कर लीजिए, देयरफॉर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 अपॉन ए स्क्वायर। फिर से आप इस 1 को उधर शिफ्ट कीजिए तो हमें मिलेगा देयरफॉर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। इसको लिखेंगे हम सेकेंड। समझ में आया? एक इसमें हमने 1 बाय आर प्लस आर की वैल्यू निकाली है, दूसरे इसमें मैंने 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस को, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर स्क्वायर, बराबर है। इसको स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, इज इक्वल टू, अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां पे भी हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का, यानी ये आएगा 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए प्लस 1। समझ में आ रहा है आपको? तो देयरफॉर अब देखिए यहां पे ये 2 उधर जाएगा तो यहां पे आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो होगा माइनस 1। समझ में आ रहा है कि देखिए आपको 1 बाय 1 इसका स्क्वायर कैसे किया है, ये देखिए यहां पे ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया। अब ये 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो टर्म है यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए माइनस 1। अब क्या होगा, ये -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा,
ए स्क्वायर से इस टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर से, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे आएगा 189 इज इक्वल टू 441 माइनस 42a, देयरफॉर 42a इज इक्वल टू आएगा 441 माइनस 189, तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, देयरफॉर 42a इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा देखिए, यहां पे 2, ये 5 और ये 2, 252 अपॉन 42, देयरफॉर a की वैल्यू 252 अपॉन 42, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 6। आप डिवाइड करके देखिए वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। जैसे 2 से डिवाइड किया तो ये 126 और ये 21 आएगा, 21 1 जा 21, 21 6 जा 126, तो a की वैल्यू आपकी 6 आ गई। हम क्वेश्चन नंबर 12 बाद में सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 6 आ गई तो हमें टर्म्स फाइंड आउट करने, तो पहले r फाइंड आउट करने का, तो a की वैल्यू 6 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 6, मैं इसको साफ कर देता हूं, ये बाद में सॉल्व करेंगे। देखिए पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा 1 अपॉन r प्लस r इज इक्वल टू 21 अपॉन 6 माइनस 1, तो यह आएगा 1 अपॉन r प्लस r इज इक्वल टू 21 माइनस 6 यानी 15 अपॉन 6, 15 अपॉन 6 यानी क्या होगा ये 5/3, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 3 और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r, तो 3r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 3 is equal to 0. I will check it once. हेलो, जैसे ये देखिए, सॉरी, जैसे ये 3 से डिवाइड किया था तो हमें यहाँ पे 5/2 आना चाहिए था, गलती से वो 5/3 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2r स्क्वायर, इट मीन्स इट इज 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, तो अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए, 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आएगी 1/2 और r इज इक्वल टू आएगा 2, तो आप एक एक लेके फिर अब a की वैल्यू भी मिल गई हमें 6 और r की वैल्यू 1/2 एंड, तो पहला लिखेंगे if r is equal to 2, r is equal to 1/2, then a upon r क्या आएगा 6 upon 1/2 यानी 12, a is equal to आएगा 6 और a into r is equal to आएगा 6 into 1/2 यानी 3, therefore that terms are 12 6 3, और if सेकेंड में if r is equal to अगर 2 है then a upon r इसकी वैल्यू आएगी 6 upon 3 that is 6 upon 2 that is 3, a की वैल्यू तो आएगी 6 और ar is equal to आएगा 6 into 2 that is 12, means we can say that or 3 6 12, means required terms are 12 6 3 और 3 6 12, जिनकी एडिशन करेंगे तो 21 आएगी और जिनके स्क्वायर्स की एडिशन करेंगे तो 189 आएगी। ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए क्या क्या हमने यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो की है और इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
Find three numbers in GP such that their sum is 42 and their product is 1728. फिर से हमें सेम टाइप से करना है. Let three numbers in GP be A upon R, A and AR. क्या दिया है पहले? Their sum is 42. Therefore, we can say that A upon R plus A plus AR is equal to 42. Therefore, we can say that 1 by R plus 1 plus R is nothing but equal to 42 upon A. Therefore, 1 by R plus R is equal to 42 upon A minus 1. इसको लिखेंगे हम फर्स्ट. सेम इक्वेशन फॉर्म किया है, R को A के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. ठीक है. अब दूसरा क्या दिया है? their product is 1728. तो क्या आएगा? therefore A upon R into A into AR is equal to 1728. तो ये R और R कैंसिल हो जाएगा. तो therefore A into A into A क्यूब आएगा. अब देखिए ये 1728 इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे हम. पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये 8 6 4 into 2. फिर से 2 से डिवाइड करो इसको तो 4 3 2. 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको. 4 से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा? 4 से डिवाइड 2 फिर 1 और 6 into 8. क्या किया? इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो A क्यूब इज इक्वल टू ये 6 क्यूब इंटू 2 क्यूब आ गया. तो A की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2 दैट इज 12. तो A की वैल्यू 12 मिल गई है. ठीक है. A की वैल्यू मिलना जरूरी है. A की वैल्यू यहां पे डालते हैं. देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, R की वैल्यू निकालनी है. इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या होगा? देखिए 1 by R plus R is equal to 42 upon 12 minus 1. 42 upon 12 इसको अब 6 से डिवाइड करते हैं तो 7 by 2 minus 1. तो 1 by R plus R is equal to आएगा 5 by 2. फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2R से तो ये आएगा 2 plus 2R square is equal to 5R. फिर से वही इक्वेशन आया 2R square minus 5R plus 2 is equal to 0. तो इसको स्प्लिट कीजिए मिडिल टर्म. देयरफॉर 2R square minus 4R minus R plus 2 is equal to 0. इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 2R minus 1 और R minus 2 is equal to 0. तो R के फिर से दो वैल्यूज आ गई 1 by 2 और R is equal to 2. तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे इफ R is equal to 1 by 2 then A की वैल्यू तो हमें पता है. A की वैल्यू 12 आई है तो A अपॉन R क्या आएगा? 12 into 2 that is 24. A आएगा 12 और A into R is equal to आएगा 12 into 1 by 2 that is nothing but 6. And second, if R is equal to आएगा 2 then ये A upon R is equal to आएगा 12 upon 2 that is 6. A is equal to आएगा 12 और AR is equal to आएगा 12 into 2 that is 24. Therefore required numbers are या तो इसको लिखेंगे हम 24 12 6 और 6 12 24. That is your final answer. समझ में आया आपको? तो इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है. फिर देखेंगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में इतना काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.